journey often begins with a single step. Every great tree grows from a single seed. Every great movement often has its origin in the actions of one person. Sri Ramchandra Fatehgarh, affectionately known as Lalaji, is revered as the founding figure of the spiritual tradition that evolved into Sahaj Marg. Under the Sri Ramchandra Mission, established by Lalaji's disciple and successor, Babuji Maharaj of Shahjahanpur in 1945. Babuji emphasized simplicity in spiritual practice. Sahaj Marg focused on personal and a connection with the inner self, guided by the support of a spiritual guide. One core founding principle of Sahaj Marg was that no fee would ever be charged for spiritual training, as Babuji considered it a basic. Over the decades, Sri Ramchandra Mission continued to evolve to meet practitioners and society. After Babuji's passing in 1983, the mission's second president and spiritual guide, Sri Parthasarthi Rajgopalachari, lovingly known as Chariji of Chennai, played a pivotal role in modernizing and expanding its reach. Sahaj Marg inspired the Heartfulness movement under the leadership of Kamlesh Patel, affectionately known as Daji, the spiritual guide since Chariji's passing in 2014. Under Daji's guidance, Heartfulness has made the practice of Sahaj Marg even more inclusive and universal. It represents a life guided by the wisdom and intuition of the heart. It has retained the essence of Sahaj Marg while simplifying its presentation to appeal to contemporary seekers. Under Daji's guidance, Heartfulness has reached over 160 countries with millions of practitioners and 16,000 volunteer trainers. Kanha Shantivanam, the International Heartfulness Center near Hyderabad, has emerged as a model community that is home to one of the largest meditation spaces in the world. It hosts people of all religions and beliefs to try and find common ground and build harmony in today's increasingly divided world. Daji has also encouraged Heartfulness volunteers to make valuable contributions in the fields of environment, sustainability, agriculture, education, health, and sports. This has led to over 10,000 acres of land being reforested and over 800,000 students benefiting from Heartfulness education programs and massive outreach through free mental health helplines and fully equipped medical center. Heartfulness programs are also affecting grassroots change through training programs for rural leaders and primary health workers. A training academy for badminton, swimming, squash, volleyball, and cricket has also been set up. Many more projects are envisioned and are currently being worked on. Heartfulness includes guided meditation apps, corporate wellness programs, and initiatives for youth and community development. It has become a movement that bridges ancient wisdom with modern living, offering a path to inner peace, self-discovery, and collective harmony. A silent movement for positive transformation of the planet and its people is underway. It has spread to. Hello. नमस्ते सभी भाइयों और बहनों का, और इस सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं राखी अरोरा हार्टफुलनेस संस्था से हूँ। हमारी ये जो संस्था है, करीब 160 देशों से भी ज़्यादा हमारा प्रेजेंस है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं।
हमारी ये जो संस्था है ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम वॉलंटियर्स स्वयंसेवक द्वारा इसे चलाते हैं, राइट। हमारे ऑलमोस्ट 13,000 से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुंबई में करीब करीब 250 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं जो कोई भी इन पद्धतियों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आप किसी भी पार्ट में हो मुंबई के, हम आपको किसी न किसी हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनसे आपको जोड़ सकते हैं और आप इसका एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और हमारे मुंबई में करीब करीब 59 सेंटर्स है जहाँ पे हम ग्रुप मेडिटेशन हर बुधवार को करवाते हैं, और 22 से आसपास सेंटर्स हैं जहाँ पे संडे का ग्रुप मेडिटेशन होता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया हमारे 250 प्लस ट्रेनर्स हैं, उनके पास आप कभी भी जा सकते हैं और ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे पास स्कूल्स के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, कॉलेजेस के लिए प्रोग्राम्स है। स्कूल्स और कॉलेजेस के ये जो प्रोग्राम्स है ना केवल स्टूडेंट्स के लिए हैं पर टीचर्स के लिए भी है, और ये सब सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है। उसके अलावा कॉरपोरेट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विलेजेस, सोसाइटीज़, जहाँ कहीं भी आप चाहें, हमारे अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हम आके आपके यहाँ हम आपको इसका अनुभव दे सकते हैं। सो ये एक थोड़ा सा एक संक्षेप में था हमारे इस संस्था के बारे में। आज हम यहाँ मौजूद है क्योंकि एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है जिनके लिए हमारे साथ ऋषि रंजन जी आए हुए हैं। जो आज का जो कार्य है उसका नाम है योग कर्मस्य कौशल्य। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, पर उससे पहले मैं हमारे जो बॉम्बे के जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश पटेल जी, उनको इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे आए और आगे के जो हमारे अतिथि हैं उनको इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू। सभी को नमस्ते। और आज के हमारे जो प्रमुख वक्ता है श्री ऋषि रंजन भाई, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। ऋषि रंजन भाई ये कार्यक्रम के लिए बेंगलोर से स्पेशली आए हैं और हमारे साथ यूथ आइकॉन कही जाने वाली हार्टफुलनेस की सिस्टर है अदिति सक्सेना, जो पूना से आई है। अदिति, आपका भी स्वागत है। और हमारे नेशनल डायरेक्टर हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जो यूथ विंग को संभालते हैं, वैसे डॉक्टर निवेदिता श्रेयांश जो हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और हमारे सभी भाई बहन जो हार्टफुलनेस से है उसके अलावा है, आप सभी का धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। हार्टफुलनेस के बारे में तो आप सब जानते हैं, आज की तारीख में चर्चा में है, क्योंकि एक ऐसा अनुभव कराते हैं हम। पिछले 2 दिनों में हमने देखा तो पहले दिन कुछ 320 के करीब लोग थे जिन्होंने रिलैक्सेशन अपने से अनुभव किया, और कल का जो था, कल का ऐसा है कि कल का 600 प्लस लोग थे जिन्होंने अनुभव किया। और प्रतिक्रिया जो है, हमने कुछ प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की है, उसका हम वीडियो बनाएंगे, आप तक शेयर करेंगे। एक QR कोड रखा है यहाँ पे, तो QR कोड से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आगे आपको, जैसे राखी जी ने इन्फॉर्मेशन दिया, हमारे बहुत सारे ट्रेनर है, यहाँ तक कि 260 प्लस तो ट्रेनर है,
तो आपकी लोकेलिटी में भी हो सकता है कोई ट्रेनर हो, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आपको जो भी कुछ इंक्वायरी रहेगी आप काउंटर पे पूछ सकते हैं। हमारा स्टॉल है CD 33, 34, 35। तो आप सबका स्वागत है। अब मैं ऋषि रंजन भैया को इनवाइट करूंगा। ऋषि रंजन भैया प्लीज़ कम। अरे तू एक एक ना, हाँ हेलो। भैया मैं क्या चाहता हूँ आप ऋषि रंजन जी इंडिया हेड मल्टीपल इंटरनेशनल आईटी कंपनी में काम करते हैं। 27 साल से ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारी कंपनी सच एस IBM, TCS, इन्फोसिस वगैरह में सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पे उन्होंने रोल्स निभाए हैं। उन्होंने अपना जो इंजीनियरिंग है वो NIT रूरकेला से किया हुआ है और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्स मिशिगन रॉस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से किया है। ये एक हार्टफुलनेस ट्रेनर भी है और पिछले 27 साल से भी ज़्यादा हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी डीप एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रियलिटी पे टॉक्स दिए हुए हैं और एक रेडियो सिटी पे उनका एक शो था जिसका नाम था शांति सूत्र। और ये हार्टफुलनेस प्रिंसिपल्स के भी काफ़ी सारे उनके जो पोस्ट है जागरण.com में भी मिलेंगे। उनका एक YouTube चैनल चलता है जिसका नाम है एक ऋषि की बातें, जो काफ़ी प्रचलित है पूरे इंडिया में। और काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल्स, कॉलेजेस, TV चैनल्स, कॉरपोरेट्स वगैरह में काफ़ी सारे उन्होंने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, रियलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन एक्सीलेंस इत्यादि। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे लेक्चर्स भागवत गीता के ऊपर, हमारा एक हार्टफुलनेस गीतोपदेश का प्रोग्राम है उसके अंडर काफ़ी लेक्चर्स उन्होंने गीता के ऊपर भी उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है काफ़ी ग्लोबल और बहुत सारी जगहों पे मेडिटेशन कैंप्स भी कंडक्ट किए हैं। हम ऋषि रंजन जी का स्वागत करना चाहेंगे। निवेदिता को सबको बुलाते, बाद में निवेदिता का इंट्रोड्यूस करते हैं। I would also like to invite Aditi Saxena on the dais and Sister Nivedita Shreyans as well. डॉक्टर निवेदिता का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वो एक डिस्टिंग्विश एजुकेशनिस्ट है, डायरेक्टर है कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एट PIMSR. Over 2 decades so she has significantly contributed एजुकेशन के लिए, कॉर्पोरेट रिलेशंस में, वेलनेस वगैरह में। वो एक एसोसिएट प्रोफेसर है इन मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड उनका डॉक्टरेट है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, जिसका स्पेशलाइजेशन था ब्रांड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट सेंट मेरी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कैलिफोर्निया से किया हुआ है। शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसेप्शन कमेटी एंड उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी का भी हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस थे उनको इनवाइट किया हुआ था वहाँ पे। शी हैज़ ड्रिवन मैनी इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स
and industrial tie-ups for the Pillai College of Engineering and Management. And she plays a very key role in establishing an agreement with Airbus France for students training and initiated youth exchange programs in US, Europe, UAE and Thailand. As far as her contributions meditation और wellness में है, वो एक wellness and heartfulness trainer है एंड एक बहुत पैशनेट है खुद भी फिटनेस और वेलबींग पे. उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है नोटेबल फिगर्स के साथ, वेंकैया नायडू, मनोज सिन्हा, अनुराग जी एक्सेट्रा. दैट्स इट अबाउट. थैंक्स. I would like to felicitate Rishi Ranjan ji first. तो आप ही करो ना. हाँ. शॉल. डॉक्टर निवेदिता श्रेयांश का फेलिसिटेशन करेंगे. अदिति सक्सेना का भी फेलिसिटेशन करेंगे. Thank you so much. Yes. जैसे इंट्रोडक्शन तो डॉक्टर निवेदिता जी का तो हो चुका है. अब जो अलग अलग हार्टफुलनेस के इनिशिएटिव्स है उनमें से 3-4 इनिशिएटिव्स को डॉक्टर निवेदिता हेड करती है, उसको आगे लेके जा रही है. बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, वो उनमें से जो वो हेड कर रही है वो एक्टिविटीज़ का वो ज़्यादा से हमें अच्छे से बताएगी. तो मैं इनवाइट करूँगा निवेदिता जी से कि हमें कुछ अपना अनुभव और जो हम वो बताना चाहते हैं वो बताए. थैंक यू जी. So good afternoon to all of you. सबको हार्टी प्रणाम.
सारे हार्टफुलनेस के अभ्यासीज हैं, जितने हैं उतने हाथ ऊपर करिए। लव यू ऑल, सुपर्ब। सो और भी अच्छा बढ़िया काम होगा। अपने हार्टफुलनेस अभ्यासी है, इनको इन्फॉर्मेशन, हमारे खुद परिवार में इन्फॉर्मेशन की कमी होती है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो आज बहुत अच्छा मौका है कि आप सब तक मैं इन्फॉर्मेशंस पहुंचाऊंगी, तो आप लोग किस किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बोलूँगी। सबसे पहले तो आई वेलकम ऋषि रंजन जी, एक बहुत ही बड़े हार्टफुलनेस के स्टार है। एक्चुअली ही इज़ अ स्टार परफॉर्मर ऑफ हार्टफुलनेस। कोई भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा इंडिया में, अब्रॉड में, कहीं भी, तो इनका नाम ज़रूर रेकमेंड किया जाता है कि इनको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी दिल से बात करते हैं, दिमाग का कम और दिल से बात करते हैं, और दिल से जो बात निकलती है वो आपको पता है कैसी होती है। तो उनकी बातों में इतनी सुंदरता है, सुनने में इतना मज़ा आता है कि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू हिम। So welcome Rishi Bhai to Mumbai, and thank you so much, all the way coming from Bangalore just to be here with all our Abhyasis. And of course we have a great dynamic young Aditi who has also traveled from Pune. We welcome you. And yes, headed by the captain and the commandant of Mumbai, Filal, Mukesh Bhai has been blessed, and Daji has chosen him as the ZC for Mumbai. And we can see so many activities happening with the most active team, I can say, of Mumbai is Kandivali and western suburbs. So I'm really blessed to be here again, second time. So I'll just give you a little bit information about the youth campaign, and let me tell you, दाजी बहुत ज़्यादा importance youth पे दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं वही है जो आगे ये जग, ये दुनिया, ये अर्थ चलाने वाले हैं, वो youth है. And India may be highest amount of populations of youth right now. So we really have to focus on youth, because they are the one who are going to lead the future of this world. And जैसे कि आपको पता है कि आजकल के यूथ की जो स्थिति है, जो दशा है, काफ़ी उनका जो 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 स्थिति में वो आज है, काफ़ी वो डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी लॉस्ट है, काफ़ी ऑफ द ट्रैक है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द न्यू लाइफस्टाइल. आजकल के बच्चे दिन में ज़्यादा सोते हैं और रात को जगे रहते हैं. ये उल्टा चक्कर चल रहा है. हमारे जनरेशन में ऐसे था, हम रात को सोते थे और सुबह उठते थे, बट अभी की जो जनरेशन है वो सुबह सोते हैं और रात को उठते हैं. तो इनका पूरा बॉडी साइकिल भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, माइंड साइकिल भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है. एंड अटेंशन स्पैन हैज़ बिकम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. उनको बिल्कुल अटेंशन स्पैन नहीं. अगर लेक्चर में बच्चे बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट तक वो लेक्चर सही ढंग से सुन पाते हैं. ऐसा एक रिसर्च भी क्रिएट हुआ है, जिससे उनका पढ़ाई में भी ध्यान कम लगता है और समझने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो ऐसे जो हमारे यूथ है, जो हमारे खुद के बच्चे हैं, अगर ऐसे लॉस्ट बिहेव कर रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ना, उनको साथ देना, उनको ट्रैक दिखाना ही हम लोग कर सकते हैं और हमें करना है. एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, कि हमारे पास इतनी अच्छी विद्या है, इतना अच्छा स्किल है, जिससे हम बच्चों को ट्रेन कर सकेंगे. तो लेट मी टेल यू, हम लोग हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट यूथ प्रोग्राम में बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर, सारे हमारे भाई बहन जितने भी लोग हो, आप जहाँ कहीं रहते हो, हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग क्लासेस जहाँ पर यूथ प्रोग्राम्स होती है, आप वहाँ पर पहुँचिए और हार्टफुलनेस को पहुँचाने की कोशिश करिए. मैं आपको बता रही हूँ, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सुइसाइड्स आर हैपनिंग इन यूथ. They are totally disturbed. They have a very bad relationship tracks also, which is happening. The latest trend between girls and boys, the breakups and the suicides and the depression rates are going up very high. And it's high time that we all should get up and work for the cause of the wellness of youth. For youth, I will tell you, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोग्राम्स हमारे पास है. सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के हैं, दे ऑल हैव कम फॉरवर्ड एंड हैव टाइड अप विद हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट. सबसे पहले AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हमारे पार्टनर है. ICAR, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हमारे पार्टनर है. एम्स हमारे पार्टनर है.
AIIA, that is All India Institute of Ayurveda, हमारे partner, ये सारे government organizations have given approval to the heartfulness curriculum and heartfulness syllabus, which is the biggest blessing for all of us. हम बहुत strongly जाके बोल सकते हैं कि हमारे सारे programs government approved है. तो इसके लिए आपको colleges और university पहुंचने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही easily आप कॉलेजेस को कन्विंस कर पाओगे कि आप इस प्रोग्राम को आपके करिकुलम में डाल दीजिए. लेट मी टॉक क्विकली अबाउट करिकुलम. हमारे पास करिकुलम में क्या है, सिलेबस में क्या है. सिलेबस में होता है अपने पास तो 5 दिन का फर्स्ट स्टार्टअप प्रोग्राम जो सिंपल है. आप हर एक कॉलेज, सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग ये है कि इंडक्शन प्रोग्राम. आपने सुना है जब कॉलेज शुरू होता है, नया साल एकेडमिक ईयर शुरू होता है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है. उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम 10 दिन चलता है, हफ्ते भर चलता है. अगर आप कोई कॉलेज को जाके बोल दो कि आपको मेडिटेशन और वैल्यू एडेड प्रोग्राम इस इंडक्शन प्रोग्राम में कराना है, वो लोग हैप्पीली मान जाते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलता है बच्चों को. 5 दिन का अगर आप इंडक्शन प्रोग्राम करोगे तो आपको यूथ तक जुड़ने को, यूथ तक पहुंचने को अच्छा मौका मिलेगा. तो ये टाइम होता है इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त. इस टाइम में एकेडमिक ईयर शुरू होते हैं सारे कॉलेजेस के, तभी आपको अप्रोच करना है. बट जून में नहीं अप्रोच करना है, आपको मार्च या अप्रैल में बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड से अप्रोच करके उनको बोलना है कि आपको इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्लॉट दे, 1 आवर 45 मिनट स्लॉट दे. और 5 दिन का उनका डेफिनेटली होता है, कम से कम 3 से 5 दिन यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है. तो आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे हार्टफुलनेस करा सकते हैं. 30 आवर्स, 40 आवर्स, 60 आवर्स के मॉड्यूल्स है जो AICTE अप्रूव्ड है, जो AICTE ICAR अप्रूव्ड है. ये सारे प्रोग्राम्स को क्रेडिट कोर्स मिल सकता है. उनको गवर्नमेंट क्रेडिट देती है, मार्क्स देती है जो इंटरनली क्लेम कर सकते हैं और उनको मार्क्स में, इंटरनल मार्क्स में एडिशन वैल्यू मिल सकता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर इट. ऑल ओवर इंडिया हमने करीबन 500 MOUs किए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि इसमें क्राइटेरिया नंबर 12 और 6 फॉर NAC एक्रेडिटेशन. अगर आप सब लोगों ने सुना है NAC एक्रेडिटेशन, सुने हैं, NBA नेशनल बोर्ड, NAC जो कॉलेजेस को ग्रेड देता है. ये ग्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम्स. अगर ये बच्चे करते हैं तो कॉलेज को ग्रेड अच्छा मिल सकता है, उनका स्कोर बढ़ सकता है NAC में और NBA में. तो दिस हैज़ बिकम अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020. It has become a compulsory part for a college to go through a value education program. तो यहाँ पर भी हार्टफुलनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पहुँचने तक. इसके आगे आपको सब पता है हमारा सारा प्रोग्राम फ्री है, राइट. कोई कोई कॉलेजेस ट्रैवल देता है, बट कोई कोई कॉलेजेस ट्रैवल देता भी नहीं है, बट स्टिल हम लोग जाके वहाँ पे कंडक्ट करते हैं. और काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं. कान्हा में दाजी काफ़ी एम्फसाइज करते हैं. एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था राइजिंग विद काइंडनेस, जो जहाँ पर 12,000 विद्यार्थी आए थे और जस्ट 3 महीने पहले 5,000 के करीब विद्यार्थी आए. एंड दाजी वॉज वेरी हैप्पी विथ इट एंड ही सेड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स व्हाट ही फील. एंड बहुत अच्छा काम युवाओं पे हुआ है इस कार्यक्रम में. तो बस विद दिस आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई टॉक बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मच. सारे हार्टफुलनेस अभ्यासी है, हार्टफुलनेस के बारे में जानते हैं, हार्टफुलनेस ही जी रहे हैं, हार्ट से ही जी रहे हैं हम लोग. तो ज़्यादा आप लोगों की बताने की ज़रूरत नहीं है. आप सब लोग आए, यू मेड एफर्ट एंड यू आर बीइंग काइंड टू अस, काइंड टू ऋषि भाई, काइंड टू मुकेश भाई. क्योंकि अगर आप लोग नहीं तो कार्यक्रम नहीं होता. अगर ऑडियंस नहीं, लोग नहीं, अपने भी लोग होना बहुत ज़रूरी होता है. तो अपने लोगों को देख के और खुशी होती है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड कीप रॉकिंग वेस्टर्न सबर्ब टीम. एंड वी आर जेलस ऑफ यू कि हम भी इतने एक्टिव हो जाए नवी मुंबई में. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड सी एंड होप सो दैट वी गेट दाजी सून टू मुंबई. एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगी. हम लोग एक बहुत बड़ा यूथ इवेंट कर रहे हैं जहाँ पर करीबन 5,000 यूथ, हम लोग 3 दिन का ध्यान साधना, दाजी ने अप्रूवल दिया है, एकात्मा अभियान.
जो मार्च 3rd, 4th, 5th को नवी मुंबई कन्वेंशन सेंटर में होगा। आप सब लोग ने शायद नवी मुंबई वेलनेस फेस्ट अटेंड किया था, तो वही सेम होगा। और यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े कलाकार भी लेके म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, एंड 5000 यूथ हैव ऑलमोस्ट said yes. Almost 15 colleges of Navi Mumbai have said yes that they want to be part of this event. It is under the Ministry of Culture and Ministry of Youth Affairs and Sports. We are hoping and praying that Mansukh Mandviya ji आए Youth Affairs Minister, और गजेंद्र शेखावत जी जो कल्चर मिनिस्टर आए, और साथ में दाजी भी आ जाए। यही बड़ी प्रेयर है, एंड इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको जल्दी फ्लायर्स, इंफॉर्मेशन, पोस्टर्स सब पहुंच जाएंगे। Thank you so much and God bless you all. Thank you for giving me this honor, respect and time to talk to all of you. Thank you all of you. Hello. Thank you so much, Nivedita ji, for giving us an insight कि हमारे कितने सारे ऐसे initiatives हैं। कुछ हम जानते हैं, कुछ शायद आज हमें और पता चला है। सो वी विल ऑल मेक आवर एफर्ट्स एंड इसको और ज़्यादा पुश करेंगे कि हम और यूथ को इन्वॉल्व कर पाए, है ना। थैंक यू। अब जो मेन कार्यक्रम है, मैं ऋषि रंजन जी से इन्विटेशन करूँगी कि वो आके अब उनका कार्य शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू निवेदिता जी, थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू सर। तो मुकेश भाई ने बोला कि आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आना है। बात वहीं शुरू हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। अभी हम लोग के पास 35 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट गीता पे थोड़ी बात होगी और 10-15 मिनट सिस्टर रिद्धि के क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब होगा, और फिर रिलैक्सेशन और ध्यान होगा। गीता आप सब लोगों ने हिंदी परिवेश में, भारत में सबने जानते होंगे, पढ़ा होगा। इसमें से कुछ 2-3 श्लोक हैं, उनके बारे में थोड़ा आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, गीता भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन फंडामेंटल गीता का क्या है? एक बात जो सभी 18 चैप्टर्स में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। अगर एक फॉर्मूला अगर आप पकड़ें, तो फॉर्मूला ये है कि कर्म और कर्ता दो अलग हैं। कर्म, एक्शन एंड द एक्टर आर डिफरेंट। भगवान श्री कृष्ण ने अगर देखिए बात करनी जब शुरू की, तो पहले अध्याय में अर्जुन ने सारी प्रॉब्लम्स बताई कि वो युद्ध क्यों नहीं कर सकता है। दूसरे चैप्टर में अगर हम सब लोग सोचें, तो भगवान श्री कृष्ण को ये उत्तर देना चाहिए कि युद्ध करना क्यों सही है। उनको ये बताना चाहिए कि युद्ध करना सही है क्योंकि दुर्योधन गलत थे, दुशासन गलत थे, भीष्म गलत थे, सब गलत थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा हान किया, इसलिए तुम युद्ध करो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि कर्म पे वो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कर्ता पे ध्यान दिया। करने वाला अर्जुन था, इसीलिए अर्जुन पे बात हुई, अर्जुन के कर्म पे बात नहीं हुई। क्योंकि जब करने वाला बदलता है तो कर्म से हम बहुत आगे चले जाते हैं, और यहीं से गीता शुरू होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के 3 जो श्लोक हम लोग बात करेंगे। पहला वाला धनंजय, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन हमें बताया, योगस्था कुरु कर्माणि, योग की दशा में रहकर कार्य करो। योग की दशा में अगर आप रहकर कार्य करेंगे तो क्या होगा? संगम त्यक्ता धनंजय, संगम। इसको अगर आप ऐसे समझें बाबूजी की लैंग्वेज में, तो दीज आर एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स। जो हम अटैचमेंट्स, जो संग बना लेते हैं, इस मोमेंट का संग अगले मोमेंट से, अगले मोमेंट का संग अगले मोमेंट से, ये पूरी संग की श्रृंखला बना रखी है, और ये संग ही हम पर भारी पड़ रहा है। संगम त्यक्ता धनंजय, जो मीनिंग्स हमने बना रखे हैं जीवन में। अगर आपको कोई भी, अगर आप देखें तो कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हर चीज का मतलब बनाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये मेरे साथ हुआ, उसका क्या मतलब है? ये हो रहा है, इसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? What is life? जीवन क्या है?
जीवन मतलब निकालना नहीं है, जीवन किसी मोमेंट का मतलब निकालना जीवन नहीं है। जीवन क्या है? लाइफ इज मूवमेंट, चेंज एंड एवोल्यूशन। जीवन एक बहाव है, मूवमेंट मतलब आज जो मूवमेंट है, आज जो समय है वो बदल रहा है, आज जो घटना है वो बदल रही है, आज जो मैं है वो बदल रहा है, आज जो विश्व है वो बदल रहा है। सब बदलाव में है, मेरा मन बदलाव में है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मन है और मन बदल रहा है। लाइफ इज मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है? चेंज। मतलब ये ए है, अगर ये मूवमेंट करेगा तो बी बनेगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी। सब चेंज हो रहा है। मूवमेंट, अगर मूवमेंट में है, अगर जीवन में गतिशीलता है, इफ आवर लाइफ इज रियली डायनेमिक, वी विल चेंज। और इस चेंज में क्या है? लाइफ इज मूवमेंट, चेंज एंड एवोल्यूशन। उसी बदलाव में हमारा विकास है। जीवन एक बहाव है, बहाव में बदलाव है और बदलाव में विकास है। अगर हमारे पास ये जीवन की डेफिनेशन नहीं है तो संगम त्यक्ता धनंजय, तो हम लाइफ में संग बना लेते हैं। योगस्था कुरु कर्मणि, अगर आप योग की उच्च दशा में होंगे, संगम त्यक्ता धनंजय, तो संग आपका खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, आपकी बनाए हुए मोमेंट से वो जीवन कटे या ना कटे, समो भूत्वा। क्यों? क्योंकि आप परे चले गए। सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, आपको उस पर डिफरेंस नहीं महसूस होगा। समत्वम योगा उच्यते। इसी इक्वेनिमिटी को, इसी हमारी मानसिक दशा को योग बोला गया है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी करंट एग्जिस्टेंस में, हमारे जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें ये समत्वम नहीं है, उसमें संग है। सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात हमारे जो अर्जुन में भी थी। पहला श्लोक, पहला जो भगवान ने जो अर्जुन ने अपनी बातें बताई, तो पहला श्लोक जो भगवान ने अर्जुन को बोला वो ये बोला, अशोचयन, जिस पे दुख ना करना हो, ना अशोचयति, उस पर तुम दुख कर रहे हो। देखिए पहली बात बोली है, अभी गीता का शुरू ही नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन। द कॉज क्या है लाइफ में? जिस पे जो दुख नहीं करना है उस पर तुम दुख कर रहे हो। पूरी गीता का एक लाइन में अगर आप करें तो यही है, जिस पे दुख नहीं करना है वो तुम दुख कर रहे हो। लाला जी महाराज ने बोला है, हैप्पीनेस इज परमानेंट, सॉरो इज इल्यूजरी। हैप्पीनेस इज परमानेंट, सॉरो इज इल्यूजरी। जिस पे दुख नहीं करना है उस पे तुम दुख कर रहे हो। फिर क्या बोला उन्होंने? अशोचयन ना अशोचयति त्वम प्रज्ञावदा भाष्यते। जिस पे दुख नहीं करना है उस पे दुख कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा अंदर से अभी उस तरह का ज्ञान नहीं आया है, ज्ञान नहीं मैच्योर हुआ है। मगर प्रज्ञावदन भाष्यति, मगर बोलने में तुम्हारी बड़ी प्रज्ञा है, तुम बोल बड़े नॉलेजेबल तरीके से बोल रहे हो, लेकिन जिस पे शोक नहीं करना है उस पे शोक कर रहे हो। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से एक लाइन में यही हमारी भी प्रॉब्लम है। हम बोलते बहुत कुछ हैं जैसे नॉलेजेबल, लेकिन अंदर से जिस पे शोक नहीं करना है उस पे शोक कर रहे हैं। यानी कि वो नॉलेज हमारे अंदर अभी परिपक्व नहीं हुई। वो हमारे अंदर जो बीज था उसमें से पेड़ निकला नहीं, पौधा निकला नहीं, पुष्प बना नहीं, लेकिन प्रज्ञावदन भाष्यति, बोलने में हम वैसा ही बोल रहे हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर फास्ट ट्रैक किया जाए तो सल्यूशन, कई सारे सल्यूशंस हैं, लेकिन एक सल्यूशन जो मुझे अच्छा लगता है, जहां पे भगवान ने उद्धार वर्ड यूज किया कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। देखिए हम सब लोग मालिक की दाजी की आवाज सुने कि भाई एक्सटर्नल, इंटरनल प्रोग्रेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इज योर्स, राइट? उद्धार कैसे होगा? उन्होंने, भगवान ने बोला है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। उद्धार कैसे होगा? उद्धार के लिए आत्मना, अपने मन से ही हमारा उद्धार होगा। आत्मना मतलब मैं, मेरे मन से ही मेरा उद्धार होगा।
न आत्मनम अविसादेत, वरना अपना पतन होगा। हम सब लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान ने बोला कि सर्वधम परिज्यात माम एकम शरणम व्रजा, सभी चीजों को छोड़कर, धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अगर आप शरण में जाएंगे तब वो काम करेंगे, लेकिन उतना काम तो मेरे मन का है, वो कंट्रोल लेंगे, मगर आप जब तक मन के द्वारा उधर नहीं जाएंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो उद्धार अगर आपको करना है, अगर योगास्था कुरु कर्माणि, सबसे पहला स्टेप है कि कर्म पे नहीं कर्ता पे ध्यान दें, बाहर नहीं अंदर की ओर देखें, क्योंकि करने वाला बाहर नहीं है, करने वाला एक वेव्स हैं जो उठ रही हैं, थम रही हैं, उठ रही हैं, थम रही हैं, मगर उसके पीछे का जो सागर है, हमें सागर की तरफ देखना है कि ये वेव्स क्यों उठ रही हैं, क्यों थम रही हैं। अंतिम जो श्लोक है, जो पहला हमने बताया भगवान का जो श्लोक है, अंतिम जो होगा 700 लास्ट श्लोक क्या है? अगर आपने ये सब कर लिया तो क्या गीता का प्रॉमिस है? गीता का प्रॉमिस है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण हो। फिर क्या है? यत्र पार्थ धनुर्धरा, भगवान योगेश्वर कृष्ण का होना ही काफी नहीं है, उनके साथ धनुर्धर पार्थ होना जरूरी है, उनके साथ हमारे ये सारे वॉलंटियर्स होना जरूरी हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, पार्थ वैसा नहीं कि वो खाना खा रहा है या म्यूजिक सुन रहा है, गांडीव लेके तैयार है। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, जब ये दोनों आते हैं साथ में, यानी कि हमारा एक्शन इज गाइडेड बाय आवर इनर कनेक्शन। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र, वहां क्या होता है? श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, किसी भी मनुष्य के ऐश्वर्य से खूब भला, ईश्वर का ऐश्वर्य श्री। विजयो, विजय मतलब आपका बनाया हुआ गोल नहीं, उसका बनाया हुआ गोल, उसके कर्म की पूर्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला अहम कालो अस्मि, मैं ही समय हूं, उस समय में जो घटनाएं घट रही हैं वो विजय, भगवान के बनाए हुए समय की विजय। श्री विजयो भूतिर, भूतिर मतलब एक्स्ट्रा पावर। आपने देखा होगा कि जब हम वॉलंटियर वर्क में जाते हैं तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। 5000 कैसे आएंगे जब शुरू होगा पता नहीं, मगर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ जाती है। श्री ऐश्वर्य आ जाता है। विजय वो काम वैसा होता है जैसा होना चाहिए। भूतिर एक्स्ट्रा पावर। ध्रुवम निश्चय ही। नीति, नीति मतलब हर चीज बड़े ही जैसे डिवाइन प्लान की तरह से चलती है। आपने बड़े बड़े भंडारे में देखा होगा, हर चीज एकदम मेजर्ड वे में होती है, कहीं कुछ खटक की आवाज नहीं, कहीं कुछ चिल्ला चिल्ली नहीं, कहीं कोई वैमनस्य नहीं। नीति। मतिर्मम, ये मेरा मत है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, श्री विजयो भूतिर ध्रुवम नीति मतिर्मम, ये मेरा मत है। इतना लंबा, इतना बड़ा प्रॉमिस हमें मिला है। तो बातें काफ़ी हो सकती हैं, मगर बात को विराम देंगे और थोड़े क्वेश्चंस लेंगे कि बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू ऋषि भैया। कुछ प्रश्न उठे मेरे जहन में जब मैंने भैया को बातें करते हुए सुना, और जब स्पेशली क्योंकि युवा पीढ़ी से बात शुरू हुई थी, तो हमारे कुछ प्रश्न हैं कि भगवत गीता तो बहुत सालों पहले कही गई थी, उसका रेलेवेंस और उसको हम अपने कर्म में कैसे इस एरा में लेकर आए, तो ये एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि इसका रेलेवेंस आज के टाइम पे, वो भी ध्यान के साथ विद साइंटिफिक एविडेंस, इसके बारे में भैया कुछ बताएं। राइट। देखिए, गीता का जो संदेश है वो भले ही बहुत पुराना लिखा गया हो, लेकिन आज भी हम सांस लेते हैं, आज भी हम भोजन करते हैं। गीता हमारे लिए उतनी रेलेवेंट है जैसे पहले थी, बल्कि कहा जाए तो आज और ज़्यादा रेलेवेंट है। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मन उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपने मन से ही मन को उद्धार होगा, से ही हमारा उद्धार होगा। तो ये मन क्या है?
तो भगवान ने बताया मन, अगर आप मन को उस तरफ अंदर ले जाएंगे तो उद्धार होगा। लेकिन ये मन है क्या, है ना? इसको कई डेफिनेशंस हो सकती हैं एंड इट्स अ फिलोसफिकल थिंग। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस है। ब्रेन इज नॉट माइंड, माइंड इज अ वाइब्रेटरी लेवल। इट्स लाइक हमारा हार्डवेयर है जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जो इस स्थूल को एक्टिवेट करता है, वो मन है, वो मन है। और अगर इसको मेडिकल साइंस में देखें तो ब्रेन वेव्स, जो दो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में ब्रेन वेव्स से बात करते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन के सेल आपस में ब्रेन वेव्स से बात करते हैं। वो एक तरह की वेव्स बनाते हैं जिससे कि उनकी आपस में संवाद होता है दो ब्रेन सेल्स का। ब्रेन सेल्स में जो ब्रेन वेव्स हैं उसको पाया गया कि अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो बीटा वेव्स हैं। थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, शांत हैं, तो अल्फा। थोड़ा आप मेडिटेटिव पोस्चर में हैं, सोए हुए हैं, तो थीटा। और डीप स्लीप में तो डेल्टा ब्रेन वेव्स, राइट। तो आपको जब डीप स्लीप में होते हैं तो आपका अंदर एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन उसके लिए हमें डीप स्लीप तक जाना पड़ता है। यानी कि हमें डेल्टा ब्रेन वेव्स के लिए सोना नहीं, एकदम डीप स्लीप, कि उसमें सपने भी ना आए, हमारा मानसिक जो शरीर है वो भी शांत हो, तो हम डेल्टा ब्रेन वेव्स में जाते हैं। तो निमहंस बेंगलोर में एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने जितने भी हार्टफुलनेस मेडिटेशन के जो थे उनको ब्रेन लगा के उन्होंने स्टडी कराया, और उसमें मैं भी था इत्तेफाक से। तो उन्होंने पाया कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन का, तो ध्यान के कुछ ही सत्रों बाद आपका जो ब्रेन वेव्स है वो धीरे धीरे डेल्टा की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि मन की जो विचलित दिखता है हमें, उसके पीछे का जो असली मन है, उसके पीछे का जो असली शांति है, उस शांति से निकलते हैं एक्शंस। हमारे बनाए हुए स्ट्रेस वाले रिलेटेड मन से एक्शंस नहीं निकलते हैं। जो पूरी तरह से मन शांत हो जाता है, उसी शांत दशा को आप आंख खोलकर उस दशा में भी काम कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो शायद भगवान श्री कृष्ण ने जब बोला योगास्था कुरु कर्माणि, अब आप योगास्था कुरु कर्माणि, अगर आप ये सोचिए आप उसमें बीटा वेव से नहीं कर रहे हैं, आप डेल्टा ब्रेन वेव से काम कर रहे हैं, तो वो कैसा काम होगा। अगेन बात कर्म की नहीं, कर्ता की हो रही है। धीरे धीरे जब ये देखा गया तो ये पाया गया कि जो ज्यादा मेडिटेट करते हैं उनमें गामा वेव्स आती हैं। गामा वेव्स मतलब जैसे आपका पूरा ब्रेन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह से काम कर रहा है। आप कहीं गामा वेव्स पे सर्च करें, और ये कैसे बनती हैं किसी को पता नहीं। और ये पाया गया कि ये जो हमारा जो 13th पॉइंट है, उस पॉइंट से निकल रही हैं गामा वेव्स। उसके पूरे निमहंस का रिसर्च पेपर है, यहीं पे बाबूजी ने 13th पॉइंट बताया है। तो जब गामा ब्रेन वेव्स निकलती हैं तो हमारा पूरा ब्रेन, और कैसे गामा वेव्स निकलती हैं ये साइंस में पता नहीं है, सिर्फ उसको पता किया गया कि गामा की फ्रीक्वेंसी इतनी है। ये स्पिरिचुअली एलिवेटेड उसमें पाया गया है कि जब आप हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन में होते हैं तो गामा ब्रेन वेव्स आती है, तब आपके ब्रेन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं होती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि धीरे धीरे साइंस उसको खोज रही है जिसको स्पिरिचुअलिटी 5000 साल पहले खोज कर बता चुकी है, क्योंकि तब उन्होंने खोजा था अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। तो इसकी रेलेवेंस आज भी है, आज साइंस इसको प्रूव कर रहा है। और जब आप उस कंडीशन को बोला गया है फ्लो कंडीशन, फ्लो कंडीशन ऐसी मानी गई है कि जब आपके अंदर एक्शन का भाव भी ना आए, व्हेन द म्यूजिशियन बिकम्स म्यूजिक, व्हेन द प्लेयर बिकम्स द गेम, तो आपको पता ही नहीं होता है, आप वो काम कर देते हैं। पता करने में समय ज़्यादा लगता है। मैम पायलट है, उनको तो ज़्यादा पता होगा कि पता करने में ज़्यादा है, क्योंकि बट जब गामा ब्रेन वेव जब स्विच ऑफ ऑन होती है तो वी आर इनटू अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। सो स्पिरिचुअलिटी is little ahead, science is still following. थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट भैया। क्योंकि आपने एक्शन के बारे में बात किया, आपने उसके बारे में बात किया कि कौन करता है, कौन डूअर है, तो मुझे एक प्रश्न आया कि इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस हम सभी
ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, तो गीता में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम सब में अर्जुन भी है, जो कि कुछ प्रश्न है या अपने कर्म को करना भी चाहता है, बट एक तरफ हमें आध्यात्मिकता भी, इन चीज़ों को कैसे हम साथ में ले जाए। करता कौन है इसमें, रियलिटी में डूअर कौन है, और काम करते करते एक्सीलेंस के बारे में भगवत गीता ने क्या कहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब लोग कर्ता के पीछे हैं और क्वेश्चन ये करता कौन है, राइट। इस पे एक शेर है, कहते हैं कि रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। अगर विश्व में देखें, माया का मोह देखें, तो रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। उस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। आपको पता नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। कौन कर रहा है ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। इसमें भगवान ने 14 चैप्टर में गुणत्रय विभाग योगा में उन्होंने बताया है, कर्तारम गुणेभ्य यदा दृष्टानुपश्यति। करने वाले हमारे गुण हैं। गुण मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत, रज और तम। ये 3 गुण जो हैं, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा आत्मा, कोई कार्य उसमें नहीं बताया गया गीता में कि आत्मा कार्य करता है, उसके चारों ओर जो इंटरप्ले हो रहा है, तो क्या होता है, तो जो हमारा विटनेस जो है, हमारे अंदर जो साक्षी है, वो अपना साक्षी भाव छोड़कर वो एक्टिविटी में निर्लिप्त हो जाता है। जैसे कि उसने उदाहरण दिया कि आप बालकनी में हैं और नीचे से बैंड बाजा बारात जा रही है, उन्होंने म्यूजिक इतना अच्छा बजाया कि आप बालकनी में, लेकिन आप अपना डांस करने लगे। आप बारात में इनवाइटेड थे नहीं, आप वहां पे गए नीचे नहीं, मगर आपने ये सोचा मैं बारात में हूं, इसलिए आपने डांस शुरू कर दिया। बस यही प्रॉब्लम है, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड कमिंग टुगेदर, सीयर एंड द सीन कमिंग टुगेदर। हम अपना विटनेस का जो है साक्षी भाव छोड़कर हम कर्ता का भाव अपने ऊपर बना लेते हैं। हम कर्ता नहीं हैं। कौन करता है? ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत, रज और तम। जब आप सतगुण प्रधान होते हैं तो आप, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक सटेलिटी आती है, सत्वम लघु प्रकाशकम, एक सटेलिटी आती है, एक एनलाइटनमेंट सा फील होता है, शांत स्थिर, वही दृश्य, वही दुनिया, जैसे एक सूरज निकल आया हो, हमें सब चीज साफ दिखने लगती है। अगेन बात कर्ता की है, जगत की नहीं है। अब आप सद्गुण प्रधान हैं तो आपको सब एनलाइटनमेंट, सब दिखेगा, जैसे सूरज निकल आया है, सब चीज वैसी दिखेगी जैसी है। अगर रज गुण प्रधान है तो क्या होता है? अगर रज प्रधान होता है तो हमारे अंदर इष्टम उपष्टम्बकम चलम चाराजा, हमारे अंदर कुछ करने की चाहत बढ़ने लगती है और हम एक्टिविटी में काम करने लगते हैं। अगर तम गुण प्रधान होता है तो क्या होता है? तम गुण प्रधान होता है गुरु वर्ण का मेव, हार्ट में एक हैवीनेस होती है और वो एनलाइटनमेंट जैसे खत्म सा हो जाता है। ये एक लंबी चर्चा है, मगर ये 3 गुण हैं। अब इन्हीं 3 गुण की वजह से हम अपने अंदर कार्य एक्टिवेट करते रहते हैं। ये 3 गुण आपस में बैलेंस नहीं है। एक गुण अगर बढ़ जाता है तो वो दूसरे को कंट्रोल कर लेता है। अगर रज गुण बढ़ गया तो आप देखेंगे आप एक्टिविटी करते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। तम गुण प्रधान हो गया तो आप अपना प्रेजुडिस लेके बैठे हैं, 7 साल 10 साल पुरानी चीज को आपने पकड़ के रखा है, आप बदल ही नहीं रहे। कोई बदलने के लिए कहेगा तो आप उसको हटा देंगे। सद्गुण प्रधान हो गया तो आप थोड़ा कंटेम्पलेटिव माइंड में होंगे। ये 3 गुण आपस में अगर बैलेंस नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। उसी से एक्शन शुरू होता है, उसी से पूरा मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ, क्योंकि ये गुणों की जो संतुलन था वो हट गया। इसीलिए कहा गया है संत वो है जिसमें संतुलन हो, बैलेंस हो। बैलेंस किस चीज का? सत, रज, तम। इन तीनों गुणों को जो बैलेंस कर लेगा वो इन गुणों के ऊपर चला जाएगा, गुणातीत। जैसे ही गुणातीत होता है, गुणों के बियॉन्ड जाते हैं, वैसे ही हमें वो दशाएं दिखने लगती हैं, जैसी भगवान श्री कृष्ण ने बताई। और हमारे यहाँ हार्टफुलनेस मेडिटेशन से हम तुरिया दशा, गुणों के ऊपर जा सकते हैं। क्लीनिंग हमें हेल्प करती है, रिस्टोरिंग द बैलेंस, और प्रेयर हमें वहाँ से कनेक्ट कर देती है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर का जो डूअर का भाव है उसको हटाती है। शुक्रिया भैया।
मैं एक आखिरी प्रश्न समय को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगी। आपने स्टेट्स के बारे में बात की तुरिया, आपने ये भी बताया कि कैसे तीनों का जो ट्रायंगल है उसके थ्रू हम अपने कार्य कर्म करते हैं और कैसे ध्यान वो कार्य करते हैं, हम नहीं कम करते। हाँ राइट तो उसमें जब आप कह रहे थे तो मुझे एक विचार आया कि आपने कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको बड़े सहजता से बताया, बिना ये बताए कि क्या करना है, लेकिन हमारे वो गुण उसको करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्योंकि उन्होंने ध्यान भी कहा है, उन्होंने कहा कि वो आप मुझे अपने हृदय में भी पा सकते हैं, हार्टफुलनेस भी हृदय के ऊपर है, और कई बार हम मन के बारे में भी बात करते हैं। तो ये मन, हृदय, सोल, ये सारी चीज़ें कैसे इकट्ठे होके एक ध्यान प्रक्रिया, क्योंकि कुछ लोग माइंड पे भी मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग ब्रेन पे मतलब हार्ट पे भी करते हैं, तो ये है क्या, ये कन्फ्यूजन जो है माइंड, हार्ट और सोल, कैन यू प्लीज एनलाइटन अस अ लिटिल बिट अबाउट इट? प्रश्न बहुत अच्छा है, मालिक से दुआ है 5 मिनट में मैं आंसर दे पाऊंगा। देखिए, ये वर्ड्स में नहीं जाते हैं, वर्ड्स जाते ही हमारा एक आइडिया बन जाता है कि इसका मतलब ये है, उसमें नहीं जाते हैं, है ना। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो धीरे से एक लेटेंट मोशन हुआ, स्रोत में एक हल्का सा एक बाबूजी के शब्द हैं, हरकत हुई। देखिए, फोर्स भी नहीं, हरकत हुई, हल्की सी हरकत हुई। फिर क्या हुआ? फिर 1 से 2 बने। जब 2 बने तो उन दोनों में एक धीरे से बात या एक महसूसियत डेवलप हुई। अभी एहसास भी डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम सब सब एक, तो आप देखेंगे वहां थॉट्स की भी जरूरत नहीं है। अब किसके बारे में सोचेंगे? सब तो एक है, आप सब हैं। जब आप सब हैं, सब में हैं, तो आपको किसी भी विचार की जरूरत नहीं है। विचार तब होते हैं, लालाजी महाराज ने लिखा, when you are at 2 places at the same time, thoughts are produced। जब आप 2 जगह एक समय पे होते हैं तो उन दोनों को जोड़ने का विचार बनता है, राइट। तो पहली बार एक तरह से एक सोच विचार डेवलप हुआ, राइट। एक पहला जो वाइब्रेशन बना उसको बोला गया फर्स्ट माइंड, पहला मन। ये हमारे वाले मन की डेफिनेशन मत रखिए, उसको एक हल्का सा फोर्स समझिए, हल्की सी हरकत समझिए, बस वो हरकत हमारे अंदर हो रही है, अभी भी हो रही है। कुदरत की आग जो रोजे अजल से जली थी, अब तक ठंडी नहीं पड़ी है। मतलब वही हरकत हमारे हृदय में भी धीरे से, अगर वो हरकत ना होती तो आज हम इतनी वापस ना जा पाते। वो हरकत अभी भी हो रही है। अब क्या होता है, जब हम ये फर्स्ट माइंड से हमारा जब डेवलपमेंट शुरू हुआ धीरे 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 धीरे, तो हमने धीरे धीरे आईनेस का भाव बढ़ने लगा। मतलब मैं पहले मेरा जुड़ाव उससे था, मेरा संबंध, फिर धीरे धीरे मैं का भाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज ये पोजीशन आ गई है कि वो पहले फर्स्ट माइंड का इफेक्ट हमारे ऊपर है ही नहीं। हमने अपने को पूरी तरीके से अलग कर रखा है। मगर यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब काम वही हो रहा है, हमारे अंदर भी वही हो रहा है। हम अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक हमारे अंदर एक हरकत हो रही है, हरकत से मैनिफेस्टेशन हो रही है, यही हो रहा है। जो वहां पे हुआ वही हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे अस्तित्व में हो रहा है। बस फर्क ये बात है कि हमने ओरिजिनल नहीं रहे, अब हम अपनी कॉपी अलग बना ली, लेकिन काम वही हो रहा है। नेचर का काम बदला नहीं है, सेमनेस वो रेप्लिकेट कर रहे हैं हम लोग। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि, हम अपने जैसा ही सेमनेस प्रिंसिपल बना रहे हैं। यानी कि उसमें भी कुछ असलियत थी, फिर थोड़ा उसमें वाइब्रेशन आए, वाइब्रेशन से थोड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ, वही काम हमारे अंदर भी हो रहा है, राइट। ये पहली वाइब्रेशन
और हमारे अंदर उठने वाले जो ये वाइब्रेटरी पैटर्न के विचार हैं, इसको माइंड कहा गया है। माइंड, जो वाइब्रेशन जो हमारे अंदर ये हरकत कर रहे हैं, उसी स्रोत से हमारा जुड़ाव, हमारे भीतर का एक अंग, एक कण समझ लीजिए, या बूंद और ओशन। लेकिन बूंद और ओशन में ये मत सोचिए ये छोटा वो बड़ा, दोनों बराबर, वो सोल हो गया। हार्ट जो है, बाबूजी महाराज ने लिखा कि ये पूरी मैनिफेस्टेशन फ्रॉम टॉप टिल टो, वो हमारा हार्ट रीजन है, वो हृदय क्षेत्र। ये तो हार्ट है, यहाँ पे ध्यान करते हैं, बट इट कवर्स आवर एंटायर मैनिफेस्टेशन, राइट। तो ये हार्ट रीजन या हार्ट हृदय क्षेत्र बोला गया। इस हिसाब से इसको आप समझ लीजिए कि एक क्षेत्र जो है वो थोड़ा मैनिफेस्टेड है, एक उसके पीछे का कारण है, एक उसके पीछे का कारण शरीर। ये 3 लेवल से आप इसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से मुकेश भाई उठ गए हैं, यानी कि रिलैक्सेशन का वक्त आ गया। शुक्रिया, बिकॉज ये क्वेश्चंस का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग गेम। जब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो क्यों, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, पर हम एक प्रश्न ऑडियंस से ले सकते हैं आपके लिए, कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो एक जो आप इनसे पूछना चाहे, तो आप हाथ ऊपर करिएगा। यस प्लीज, द फर्स्ट रो। हाँ ब्रदर, आपने बड़ा अच्छा बताया कि रज, सत, रज और तम का समन्वय ही संत बनाता है। परंतु क्या लौकिक भाषा में तो हम ये समझते हैं कि सतगुण जिसमें ज़्यादा हो वो संत है। तो ये मेरे मन में एक दुविधा सी आई, बहुत छोटी प्रश्न है, तो मैं जानना चाहूँगा। राइट, देखिए इनको गुण बोला गया है। गुण, गुण मतलब विच बाइंड्स यू, जो आपको बांध देते हैं। सत, रज और तम, अगर आप में सतगुण प्रधान हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको अपनी साधना पे, अपने हल्केपन से आपका जुड़ाव हो जाएगा, आप उसी में रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और अगर आपने सतगुण प्रधान कर दिया तो रज, रज क्या है, रज इज द ओनली एक्टिविटी। स्टम उपस्टम्भकम चल, जो हल्का सा एक्शन हो रहा है वो रज की वजह से है। ये पूरा यूनिवर्स जो प्रकट हुआ है वो रज हरकत में आया तो हुआ है। हमारी हरकत रुक जाएगी, तम, तम नहीं रहेगा। तम मतलब किसी भी चीज का एंड नहीं रहेगा, आपको हर चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये तीनों गुण की बहुत आवश्यकता रहती है। सत को ज्यादा बताया इसलिए गया है क्योंकि अगर हम रज और तम की प्रधानता है, रज और तम की प्रधानता को अगर हम संतुलित कर सकते हैं तो उसमें सत को ऐड करके कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी तम में फंसे हैं या रज में फंसे हैं तो आप उस वक्त, जैसे दाजी बोलते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा ईश्वर की याद में चले जाइए। कुछ नहीं तो आप मंदिर चले गए, भजन सुन लिया, सत्संग सुन लिया, तो क्या हुआ, आपके अंदर सत आने लगा। जैसे ही सत आएगा वो रज और तम को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन सत, रज, तम, अगर ये सत बढ़ गया तो आपने रजतम कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर सत को कैसे कंट्रोल करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, आपको वो सत भी उसके शरण में जाना पड़ेगा, आपको चरण में चढ़ाना पड़ेगा कि आपकी वजह से मैं ऐसा हूं। जहां आपका भाव आ गया तो वो फिर से आपको नीचे ले जाएगा। तो संत वो है जिसमें संतुलन हो, बैलेंस हो, और बैलेंस से ही ये यूनिवर्स हम लोग वापस गुणातीत में जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऋषि भाई। और देखिए, ऋषि भाई को तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, पर्टिकुलर में मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आपका तो जानता नहीं हूँ। तो आपको कैसा लगा? बढ़िया, लेकिन थोड़ा और जोश चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
तो ऋषि भैया बड़ा ही अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया कि भाई जैसे संत, जब आज मैं आपको सुन रहा था उस समय मुझे त्रिगुणा का आभास हुआ कि संत सिर्फ सत कर्मों से ही नहीं और दूसरे दो कर्म भी बैलेंस रहने चाहिए। तो एनलाइटिंग था भैया, बहुत ही अच्छा लगा। अब एक 5-7 मिनट की एक्टिविटी है, उसके साथ ही हमारा प्रोग्राम एक ख़त्म होएगा। इसमें हमारे ब्राइटर माइंड के बच्चे हैं जो कुछ एक्टिविटी करेंगे। ये बच्चों ने स्पेशल ट्रेनिंग ली है। हाँ, आप देखिए और समझिए कि अगर हम शुरू से बच्चे के ऊपर ऐसी ट्रेनिंग दे तो आगे जाके वो क्या कर सकते हैं। आप मैं सिस्टर तेजश्री को इनवाइट करता हूँ। ओवर टू यू सिस्टर। Thank you, brother. So, good afternoon, everyone. We are here to share about Brighter Minds. It's a unique program, and mostly it's activity-based. So, I think I should thank Brother Rishi Ranjan already. He has shared few things about neuroplasticity. So, it's the activity which is even related to neuroplasticity as well. So, we'll just main thing is it's to give children a gift of to improve their cognitive skills and overall brain development with various tools and techniques, and also which helps them in excel in various aspects of their life. So we want to pass on this gift to next generations with everlasting change, where this is a pure science, nothing about miracle or magic. So science behind Brighter Minds, you'll be able to understand once the kid starts doing few activities. So we'll start with a few exercises, and then yeah. So here his name is Giridhar. He is studying 2nd standard. He has come to demo. So just say good afternoon. Good afternoon, दीदी। हम सब भी कर सकते हैं साथ में, सो सब ट्राई करेंगे एक बार। सो okay, so first he will start. Maybe you can also start doing the same thing when he starts doing. First we'll start with hands roll on. Okay, yeah, hands roll exercise. So you can just keep your I hope you're able to see him. Yeah, so even people are doing here. So yeah, you can just start. So she has also been trained for Brighter Minds. Yeah. Even though she's not kid, but elders can do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next start with the index finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Okay. Next start with the reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next with the middle finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, the biggest difficult challenging thing. Next one, next finger. 1, index finger. 2, 3, Sorry, 4, ring finger. Yeah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. With the reverse. सब मिक्स हो जाता है अपना. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, last little finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wonderful. So, yeah. Let's give him a big clap. We'll start with one more exercise, blessings.
you can start the exercise. So first, up, down. With the right hand, you just start doing up, down. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Now with the left hand, you just make a circle. 1, 2, Near 3, the chest and the stomach 4, area. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now start doing both things at a time. अब मजा आएगा. Yeah. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So very good. Then the next, yeah, claps to him. Next, third exercise, iron and snake. You can start, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now snake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now both at the same time. With the left hand ironing, right hand snake. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. So last one will just start. Okay. So 1 and then 5. So he will just start with left hand. Yeah. Okay. 1 with the right hand, left hand 5. So again swap. Left hand 1, right hand 5. Yeah. 1, 5, 1, 5. Start doing just 1, 5. Switch the hands. Yeah. अगर इस हाथ में फर्स्ट फिंगर है तो इसमें पांचों फिंगर, तो इसको स्विच करना है. फिर पहले 5, फिर 1, फिर Yeah. 1, फिर 5. Able to do it? So, yeah, done. So, thank you. And then these are physical exercises which stimulates the cell brains to activate, and thus it improves cognitive skills. So, तो next हमारा is राइट एंड लेफ्ट माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन, वो एक्सरसाइज से बेटर होता है. so, सो आर वी डू अ होल ब्रेन एक्टिविटी. कोई सिर्फ राइट माइंड को एक्टिवेट करता है, कोई सिर्फ लेफ्ट को, बट वी डू द होल ब्रेन एक्टिवेशन. इसलिए ये सब एक्सरसाइज हेल्पफुल होता है होल ब्रेन एक्टिवेशन के लिए. yeah, next last one, just 2 minutes. So blindfold, it's a very interesting activity again. So anyone from the audience can come just to pick the ball, because we'll just blindfold the बच्चे को ही kid. भेज दो. आ जाओ जल्दी आओ, ऊपर Any आओ. 1 or 2 people, yeah. आ जाओ. kid. So आप भी आ basically, जाओ. we know that left brain has 2 parts, left hemisphere, right hemisphere. Left is about analytical skills and logical skills. Right is about intuition, creativity. So with this brighter mind, there will be a tools and techniques where there will be a harmony between 2 brain hemispheres. So overall brain development हो जाएगा. सो ये एक्टिविटी के पहले हम जैसे ऋषि भैया ने आज बताया हमें अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट एंड ऑल. सो ये एक्टिविटी के पहले ब्राइटर माइंड का एक स्पेशल म्यूजिक है विच वी प्ले, एंड दैट टेक्स द किड्स टू द अल्फा एंड द थीटा लेवल. बहुत काम और ये हो जाता है बच्चा. उसके बाद ये बच्चा परफॉर्म करता है ये एक्टिविटी. सो ऐसे हमारे 10 से 15 एक्टिविटीज़ है विच ब्रेन डेवलपमेंट भी है और कामनेस फॉर द चिल्ड्रन भी है उसमें. सो आप देख सकते हो, कुछ दिख नहीं रहा है उसको. Maybe test. You can test. You can test. You can test. कोई बड़ा भी आ सकता है अगर टेस्ट करना है तो. टेक्स्ट करने के लिए. हाँ Okay. ठीक है. नहीं अब दिख आप रहा है कोई ना? भी एक बॉल सिलेक्ट करके उनको दे सकते हो. हाँ. आप सिलेक्ट कर लो. आप एक बॉल सेलेक्ट कर. So कोई he भी is एक ball. selecting the ball. Yeah. Now Govardhan will sense. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही हैज डेवलप हिज सेंसरी ऑर्गन्स, और वो पूरे बॉडी में धीरे धीरे वो उसको फील कर रहा है, महसूस कर रहा है. ठीक है. और फिर वो स्लोली जो बॉडी के अपने पार्ट्स है वो उसमें वो फील करके हमें बताएगा. कौन? Red. रेड कलर. So very good. Maybe one more. You can pick one ball. Yeah, you just pick any color. Okay, give it to him. Yeah. So he is using his sensory perception
पर्पल। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। Thank you so much. सो ये कोर्स 8 वीक्स का कोर्स है, 30 आवर्स का। बॉम्बे में काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज है, आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेज के नीचे हम बात कर सकते हैं इसके बाद, और इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Thank you all. और बड़े लोग भी एक रीस्टार्ट करके ब्राइटर माइंड्स का प्रोग्राम कर सकते हैं कि बच्चों के लिए तो है ही है, बड़े भी अपने कॉग्निटिव स्किल सेट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होता है। तो उसके बारे में भी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी। आप सभी का शुक्रिया। ऋषि रंजन भाई, डॉक्टर निवेदिता, अदिति, राखी और हमारी पूरी मुंबई की वॉलेंटियर्स की टीम की ओर से आप सबका खास खास धन्यवाद। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सिस्टर का दूंगा, जिन्होंने हमें एक्सटेंशन दिया 15 मिनट के लिए। तो सिस्टर के लिए तालियां हो जाए। तो बस यूं ही हमारा सिलसिला चलते रहे। और अगर आपको कोई भी जानकारी, कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप स्टॉल नंबर 33, 34, 35 सी और डी दोनों रो में है, तो आप आ सकते हैं, आप सब तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। आप सभी का दिल से शुक्रिया। देन थैंक यू वेरी मच। अपने जितने भी हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर्स हैं, आप अगर स्टेज के आगे आ जाएंगे तो एक फ़ोटोग्राफ लेना चाहेंगे ऋषि भाई। सभी लोग जितने भी हैं, जितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज़ आप स्टेज के आगे आ जाइए, तो हम एक ग्रुप फ़ोटो लेना चाहेंगे। थैंक यू।